students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 13 and the name of your chapter number 13 is Water for Life. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see why water is very important for human beings or as well as all the living beings. Okay, so now what concept overview we are going to discuss in this chapter? Need of water, why we need water, and uses of water, sources of water, how water becomes dirty, and saving water. Okay, so all these topic we are going to discuss in this chapter. Okay, and as well as what is our curricular goals. Let's see. No sources and uses of water. Okay, in through this chapter, my dear student, we all are going to understand what are the various sources through which we get our water. Okay, and in what way we use our water. Then understand the importance of drinking clean water and why it is very important to drink clean water. Okay, learn ways to save water and avoid wastage. Okay, and in this chapter we are also going to see how we are going to save our water and as well as avoid the wastage of water. Okay, so all this topic we are going to discuss in this chapter. Okay, so the first topic that we are going to discuss in this chapter, need of water. हमें पानी क्यों चाहिए? तो आइए देखते हैं पानी हमें क्यों चाहिए. देखिए, all living things need water. Life is not possible without water. We need water for drinking, cooking, washing and for bathing. Even plants and animals need water for living. Clean water is colorless, odorless and tasteless. हम सारे लिविंग बींग्स को, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे आपके एनिमल्स हो, ठीक है, सबको पानी चाहिए जीने के लिए. ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स को पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ और बहुत सारे कामों के लिए चाहिए. ठीक है, अब प्लांट्स एंड एनिमल्स को पीने के लिए चाहिए, एनिमल्स उसमें नहाते भी हैं. ठीक है, और जो क्लीन वाटर होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई शेप भी नहीं होता है. ठीक है, और कलर वो पानी का कोई टेस्ट भी नहीं होता है. ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए वी नीड वाटर. देन कम्स द टॉपिक, what are the uses of water. हम पानी का कहाँ यूज करते हैं? what are the uses of water? okay, so see, we water is used for, ठीक है, तो पानी का यूज हम लोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट. सबसे पहले आपके बाथिंग के लिए, नहाने के लिए. ओके, वाटर इज यूज फॉर, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, पीने के लिए, ड्रिंकिंग. देन वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए. क्लीनिंग, पुटिंग आउट फायर, घरों की साफ सफाई करने के लिए, कहीं आग लगी है तो आग को बुझाने के लिए. कुकिंग, खाना बनाने के लिए. और प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, आप लोगों ने ट्रीज लगा दिए हैं तो ट्रीज को भी तो पानी चाहिए. ठीक है, तो ये वो सारे यूज है जिसके लिए हम लोगों को पानी चाहिए. ओके, नाउ ट्रूथ बैंक, लेट्स सी. The biggest source of fresh water on earth is rain. Now, what is the biggest source of fresh water in our planet Earth? Rainfall. ठीक है? So you can see, my dear student, we need water for bathing, drinking, washing and cleaning. ठीक है? तो इन सारी चीजों के लिए we need water. Then, as well as putting out fire, cooking and planting trees. Okay, now my dear students, we are going to see what are the sources of our water. Okay, कौन कौन से sources है हमारे पानी के जहां से हमें पानी मिलता है? तो देखिए, do you know where the water comes from? Water comes from different sources. So you all know from where we get our water? No, there are many sources through which we are going to get our water. In the next paragraph we are going to see it. Okay, see, the first source of our water through which we get water, that is rainfall. Okay, rain is the main source of water. Okay, so which is the main source of water? That is rain. When it rains, rain water collects in lakes, ponds and rivers. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आपका लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है. Some rain water goes deep into the ground. कुछ रेन वाटर जो होता है ना, जब पानी हमारा लेक, पॉन्ड्स और रिवर में इकट्ठा तो हो गया, लेकिन बहुत सारा पानी जो होता है ना, वो आपका अंडरग्राउंड में चला जाता है. ठीक है, दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर. इसी को कहा जाता है ग्राउंड वाटर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, with the help of hand pumps, wells and tube wells, groundwater is drawn out. Now here question comes, in what way we are going to get this groundwater? ठीक है, तो ट्यूब वेल की हेल्प से, हैंड पंप की हेल्प से या वेल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं. So here my dear student, you can see a truth bank. Clouds are made from millions of tiny droplets of water. अब बारिश तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा. ठीक है, लेकिन बारिश होती कैसे? बारिश होती है जब बहुत सारे छोटे छोटे पानी की बूंदे मिलकर एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म करते हैं ना, वही क्लाउड बरसता है आपका. ठीक है, चलिए, नाउ
इन समर द स्नो ऑफ माउंटेन मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। गर्मियों में क्या होता है, पानी पिघलता है सॉलिड फॉर्म में जो रहता है, तो जो माउंटेन में बर्फ है वो क्या होता है, वो पिघलना शुरू होता है, ठीक है, और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, आइस से पानी में कन्वर्ट होता है। दिस वाटर देन फ्लोज इनटू रिवर्स एंड लेक। फिर वही जो आइस आपका पानी में कन्वर्ट हो गया है, वो वाटर कहाँ फ्लो करता है, आपके रिवर्स में और लेक्स में। रिवर्स आर स्मॉलर देन सीज एंड ओशंस, ठीक है, और रिवर्स हमारा जो ओशन होता है, हमारा सी होता है, उससे छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओशन और सीज क्या होता है। ओशन एंड सीज आर बिग वाटर बॉडीज बट वी कैन नॉट यूज सी एंड ओशन वाटर एज इट इज सॉल्टी। देखिए, बरसात हुआ, पानी आपका लेक में, पॉन्ड में और रिवर्स में स्टोर हो गया, और बहुत सारा पानी आपका पानी जमीन में सोख लिया, ठीक है। तो वेल्स की हेल्प से, ट्यूबवेल की हेल्प से या हैंडपंप्स की हेल्प से जो पानी ग्राउंड में गया है, जिसको जमीन में सोखा है, हम उसको पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्मियों में क्या होता है, जो पहाड़ों पे स्नो रहता है ना, वो स्नो मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होने के बाद तो पानी में कन्वर्ट होता है, वो पानी वापस से आपका रिवर के पास आता है। लेकिन हमारे पास एक और वाटर का सोर्स है, वो है ओशन और सी वाटर। लेकिन हम ओशन और सी वाटर के पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट मिला होता है, वी कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी वाटर, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर वाटर, दैट इज रेनफॉल, एंड दिस रेनफॉल वाटर स्टोर्ड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, और पॉन्ड, लेक और रिवर से हम पानी लेते हैं पीने के लिए। Now my dear students, we are going to see how water becomes dirty. पानी गंदा कैसे हो जाता है, तो देखिए, water becomes dirty when harmful substances mix into the water. पानी गंदा कैसे होता है, कोई भी चीज गंदा कैसे होता है, जब उसमें कोई गंदगी मिल जाती है तो वो गंदा हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स थ्रो प्लास्टिक्स वेस्ट इन द रिवर, और गंदगी कहाँ से आती है, हम ही ह्यूमन बींग्स करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे घरों का कचरा कचरा ले जाकर पानी में फेंक दिया या आसपास कहीं फेंक दिया, तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली पानी में मिलता है, इससे हमारा पानी गंदा हो जाता है। द फैक्ट्रीज केमिकल The factories chemical waste are also thrown into the river. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनका वेस्ट भी हम लोग पानी में ही फेंकते हैं, ठीक है। Thus water gets polluted, और इस तरीके से हमारा पानी क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। It is harmful for all living beings, और ये सारे लिविंग बींग्स के लिए ना बहुत बुरा है, ठीक है। We should not drink polluted water, और क्यों बुरा है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए हमें कभी भी गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। We may fall sick by using this water. We should try not to pollute the water. हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ह्यूमंस की वजह से पानी गंदा ना हो। Now we are going to see in what way we are going to conserve our water. ठीक है, वाटर इज लाइफ एंड वाटर इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं, सी, water is precious, we should not waste it, drinking water is becoming scarce these days, so we must save water for the future. water सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है, ठीक है। अगर आप पानी को कंजर्व नहीं करोगे ना, तो आने वाले दिन में हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा तरीका है जिससे हम अपने पानी को कंजर्व कर सकते हैं, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करोगे, टैप को बंद कर दोगे, ठीक है, ताकि टैप से आपका पानी वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर दूसरा है स्टोर वाटर इन कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स में पानी को आप स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको जितना जरूरत हो आप उसमें से मग डाल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देन do not pollute water and try, my dear student, don't pollute the water, okay. Then use the 2 bucket method to clean the vehicles, ठीक है। और आप लोगों को अपने व्हीकल्स की सफाई करनी है तो इतना याद रखिए कि 2 ही बकेट पानी आप उसमें इस्तेमाल कीजिए, ओके। सो यू कैन सी इन दिस वे यू आर गोइंग टू कंजर्व आवर वाटर बिकॉज वाटर इज वेरी प्रीशियस, ओके। नाउ हियर ब्रेन ब्लिट्ज क्वेश्चन कम, लेट्स सी the answer to this question you are going to give me, okay. What is the color of clean water? Clean water का कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं, कलरलेस है, टेस्टलेस है, याद रखिएगा, ठीक है। Why we cannot drink sea water? Sea water हम क्यों नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर मुझे इसका दीजिएगा आप लोग। So this is all about our chapter number 13. Now come with me and let's see the wrap it up of this chapter. See,
All living beings need water. We cannot live without water. We all living beings, maybe we are humans, animals and plants, okay, they all need water, because without water they are not going to survive. Okay, water is used for drinking, cooking, washing and bathing. Okay, and water is used for, first of all, our basic need. Water is used for drinking purpose. Okay, then bathing purpose, then clothing, then washing and cooking, etc. Okay, now there are the many different sources of water. Yes, we have many different sources of water, and the most important source of our water is rainfall. Rains, rivers, lakes, pond, wells, seas and oceans. Okay, so these all are the various sources through which we get water. Okay, now रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो पानी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? रेनफॉल. ठीक है. वाटर बिकम्स डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. पानी गंदा कैसे होता है? ह्यूमंस की वजह से. ठीक है. वी शुड नॉट ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर. हमें गंदा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे. ठीक है. वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. आप लोगों को हमेशा, आपको, मुझे, हम सब लोगों को क्लीन पानी पीना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड सेव इट एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, हम लोग को पानी वेस्ट नहीं करना, और जितना हो सके हमें सेव करने का ट्राई करना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 13. नाउ जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर सेल्फ इवैल्यूएशन और क्वेश्चन आंसर सेक्शन ऑफ दिस chapter. Now, my dear students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.